So, okay guys, this is again 29th of January and we are gonna be reviewing the tasks and reviewing answers of the members, and I would give my answers over it then. So let's get into it. फर्स्ट टास्क विच आई गिव, लास्ट वाले जब दिए थे इनका आंसर मैंने दिया था, दे तो दिया था शायद, कहीं बताया था एन क्यू वो लोड डिस्प्लेस करे तब आई वुड, ऐसा एन क्यू तब तक बुलिश लास्ट टाइम की ये based on NQ's individual framework this was completely valid, but now I came to the conclusion I could have took this, but yeah, my relevance or why I wasn't immediately considering it was based upon yes, and that was valid somewhere, not invalid but 70-80% valid, and this was an exceptional case, just that now in this case it could have been considered. This was an exceptional case. My concern was still valid. I wasn't paying much attention to the charts. I was watching them from a distance, wasn't seated, and was discussing something. We and that thing that was bothering me, my concern, what my concern was actually that NQ entry formed this time, right? Here, completely valid. Previous day's framework to go lower, next day open high daily profile 8:30 में, यहाँ पे भी 8:30 यार, ये भी कैसे नहीं देखा मैंने, पागल हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ये। वैलिड फ्रेमवर्क मतलब ये दिख गया था मेरे को, हाई स्वीप इनफ अपोजिंग रेंज, स्क्रीन पे नहीं था ना, बात वही है, दूर से देख रहा था। भाई M15 खोलना एक बार, भाई ये करना, इनफ रेंज, but the actual concern for me was the asset which actually swept this, and if that asset I could consider reversing from there, then I could trade away from this without it actually getting swept. So the framework depends on the asset which actually swept this, and that was ES which actually swept this, and we came to the conclusion that we could consider this as a reversal away from there past this closure, this being 8:30 manipulation, daily open high, intraday range continuation, 8:30 manipulation here, 8:30 time window, and the willingness displacement here. So that would lead us into considering price reversing from there. Now when we actually recapped that daily range, when I actually sat on my system properly, now we came to the conclusion this could have been considered an exceptional case, and the process could have been tweaked, and then this could have been considered. देखा भी, कंसर्न भी राइट था, पर स्क्रीन पे नहीं भाई, स्क्रीन पे होना ही चाहिए, मिस कर दिया, कोई बात, आ रहा वैसा दुख होता है। You, if you want that in-depth answer, you can watch that session itself of 29th January recap for indices. So this was that concern mainly. On to the next task. Previous day is resting up because you don't trust, but I could easily trade away from previous day high. That wasn't the concern. Because NQ has a framework to be traded on both sides. Nope, NQ was simply one directional, set for a one directional move. I wouldn't trade long. This is what I would call the best framework if I want to frame shorts. I haven't failed yet. I do not remember a single time with this profile, weekly profile. और अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा, 3 days continuously expanding with the alignment of Monday, Tuesday, Wednesday, with proper body closes in one direction, hitting into an objective. Thursday I would always cap that range, counter trend, and I haven't yet, I'm yet to fail over this idea. So yeah, was the most amount of conviction if I can have over anything
इट वॉज बीइंग बेरिश टुडे सो बायस का तो सवाल ही नहीं है. फ्रेमवर्क सिर्फ to the downsides. ES has a framework for shorts and Q also has for shorts. So you will wait. Nope. I can actually, I would want to trade prior to the driver when I actually have the bias on my side. Conviction in that direction. If you thought this way, then considering driver validation is valid, but when you do one step wrong, second step automatically becomes wrong. But if that would have been the case, that if was a case of conflicting bias, then waiting for driver confirmation could have been considered, but it wasn't the case simply. अच्छा रिकी भाई गलती हो गई यहाँ से. इफ माय डेली चार्ट डिडंट लुक, आपका क्वेश्चन था ये. आई वुडंट हैव अ लॉन्ग बायस आइदर, बट उससे आपका लॉन्ग बायस कैसे हो गया सर जी? देखो सेट तो था, मेरे को भी देखने दो. दिस स्टिल सेज यार, स्टिल बेरी स्टिल प्रीवियस डे लो यार, क्या बात करते हो? So I can see a change in phase of price expansion into an objective. I can still see the rejection even with the set being on. So next day this way. Why not, sir? Monday, Tuesday, Wednesday rejecting. I can see the change in the phase of price. This is expansion, this is expansion. This is something I can consider expansion to change in phase, है ना? Both sided, okay, maybe. बट बुलिश मैं यहाँ इसके बाद पीएस तो अब डिटो ऐसा दिख रहा है. बताओ अब पीएस तो दिख ही ऐसा रहा है बिना सेट के भी. ठीक है, सेट करता हूँ मैं ऑफ. वाई बेरिश इन ईएस देन? तो मेरा पहले ठीक है. ईएस हैज दैट क्लोजर ओनली. ये हाँ, तो द सेम फ्रेमवर्क इफ यू टर्न ऑन सेट इज ऑन एन क्यू राइट. ये भेदभाव क्यों? ओ मार चला दूंगा. ओके. नो, ह्यूमन एरर, स्टिल एन ह्यूमन एरर. ओके, इफ आई वर टू लुक एट इट दैट वे, मेरा डेली चार्ट ऐसा दिख रहा है. फिर मैं जाता हूँ ऑर्ली चार्ट विषय यार. This is somewhere you would have, where you would have saw your charts. Daily chart, I would still be very. इसको अगर मैं ऑफ करूँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. उसके बाद यू सेल्ड बोथ साइड. इसके बाद मैं बुलिश. वर यू यूजिंग दिस और यूजिंग दिस? हाँ वही प्रीवियस डे मेरे को भी पता है, बट तो एक्चुअली फ्रेम रिट्रेसमेंट अवे फ्रॉम कहाँ से यूज कर रहे थे आप? Or if that would have been retracement objective should have been met to trade the expansion again, right? I get your point. Viewing this, not the best way it should have formed, but once daily closer aligns, this could be ignored. Once the daily closer aligns. On H1 क्या बोला आपने? I was seeing it as a range and so thought it could go both side. हाँ मेरे को ये रीज़न मेरे को पता है, क्योंकि कल जब ये ऐसे फॉर्म हो रहा था तब मैं भी I wasn't all comfortable seeing this form this way, but once the daily closure happens, then things are in your favor. You are viewing this still as a high where protected swing should form. अभी ये ऐसा दिख रहा है ना? This is what you mean. उसके बाद
range, you were considering this as a range law or using this to frame away, क्योंकि that could be considered using this to frame away है ना, कि framing away previous days EQ open low है ना, somewhat valid but not the best approach still. Daily chart is where you should spend the most time rather than here. First, you should spend time here as well if you are confused, but still daily chart. Daily chart, daily closure still tells me a change in phase of price. Seeing that way, this still tells me expansion. This still tells me expansion. है ना? This tells me valid framework. This lacks direction, so not an expansion. This not an expansion. Change in phases. है ना? This also indicates change in phase, so not directly expansion. So if change in phase has occurred, then retracement है ना, रिवर्सल नहीं भी माना, मिनिमम retracement. What? Okay, you are considering retracement objective being met this way. Okay, this as a retracement, then retracement objective being met this way, then a bit valid with that daily closure. Good. And seeing these highs which could have looked at engineered failure swings, right? If I were to look at it that way, only thing bullish, how I would want it to form. Yes, and it was also up high during the, yes it was, but I wouldn't want that low to be revisited. If it gets revisited, I would want that to hold, because at the first place I wouldn't want it to retrace, pop back in that deep. But if it does and expands away, then I would want that to hold, because this expansion away from here is the only thing which I am considering that I can still frame longs even though price has gained this much back. Else how I could view it, expansion, retracement to expansion, है ना? Else this is almost on the verge of validating my idea. EQ respecting is one thing, but how you would want, there would be cases I wouldn't even want price to go and pop that much deep into the EQ, है ना? By this moment I would be on the verge of cancelling my idea, but price expanding quickly away from here would have been the only thing that would have made me think, okay, now I can actually use this to frame longs as well. Otherwise I would have preferably wanted expansion and somewhat this to than this. I wouldn't have wanted to pop that much deep into the range at the first place. मैं मार चला दूंगा, खराब हो जाते हैं ये 2 मिनट बाद. अब इफ आई एम वांटिंग दिस टू होल्ड डेस्परेटली, क्योंकि अगर ये हिट हो रहा है तब तो फिर रैदर बेरिश, मैं बुलिश अब चाहता ही हूँ, तो यहीं से मेरी एक्सपेक्टेशन लो थी, और यहाँ से इस एक्सपेंशन की वजह से ही मैंने बोला कि इतना डीप आने के बाद भी कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि जा रहा है. दिस इज समथिंग आई वुडंट want to see want to be revisited. If this gets revisited, this holds no value for me, and I would rather stick to my daily charts idea, previous day low. No relevance. Only relevance if price displaces away from it. You need to consider. I won't use each and every high to view true breakout failure to manipulate. Huh? Conviction over the higher time frame should be a thing. I would anticipate some highs in higher time frame quality framework. Anticipate some highs to be actually like broken through, or I would want some highs to desperately hold, and won't want another manipulation leg of them. If you remember my M30 position on YM, I took this as an objective, and I took it, even this was it prior to this getting it somewhat this, है ना?
anticipating this to get displaced through, है ना? Higher time frame. When you have conviction in higher time frame, you do not necessarily need to do it. अब वो तो मेरे फेवर में उसने इतना मौका भी नहीं दिया कि you could wait to see reaction on this, है ना? अब क्या पता, वही है कि तुम अपना जॉब बेस्ट तरीके से करो, रिजल्ट खुद ही बेस्ट तरीके से आ जाएंगे, है ना? मेरे को एक्चुअली थोड़ी पता था उस दिन फाड़ के जाएगा, हाँ। वो तो लाइक हाई टाइम फ्रेम पे करो, काम से ही खुद ही लो टाइम फ्रेम पे सही हो जाता है। जैसे सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला चीज़ इन दो एसेट पे क्यों नहीं हुई, उन्हीं दो चोरों पे क्यों हुई? हाई टाइम फ्रेम से ही रखो भाई, बिना मजाक के। मेरे को ये क्या बोलते हैं, होली ग्रेल ही मिला था जब मेरा डेली चार्ट फ्रेमिंग बेटर हुई थी ना। आधी से ज़्यादा 90% प्रॉब्लम जो मेरे जर्नल में होती थी खुद ही बंद होगी जब मैंने डेली चार्ट पे ही अपनी वो सिलेक्शन, अपना टाइम स्पेंड करा, अपनी एक्यूरेसी डेली चार्ट पे बेटर करी। इतना डीप आ रहा है, वेट। नाउ आई वुड वांट प्राइस टू एक्सपैंड अवे फ्रॉम दिस। इतना डीप भी नहीं चाहता, बट इतना आ रहा है तो नाउ आई वुड, इफ बुलिश स्टिल बुलिश, है ना? चलो एक लो रिजेक्ट हुआ, दिस इज द लास्ट पॉइंट आई वुड वांट न्यूयॉर्क्स लो टू बी फॉर्म्ड। दिस हैपेंस immediate invalidation, immediate, I won't look for this again। और वही रीज़न था कि ये मतलब मैं तो बुलिश देख भी नहीं रहा था, पर इस और अब अगेन बोलो कि EQ से पहले या अभी प्रीवियस डे लो तो पूरा रास्ता पड़ा है। अब तो मैंने EQ का डिस्प्लेस होने का भी वेट नहीं करा, है ना? EQ के ऊपर लो रिजेक्ट करके बुलिश जा सकता था, बट वही कन्विक्शन बायस में एंट्री तो मैं पहले ही NQ के इंडिविजुअल फ्रेमवर्क ये कंसिडर कर रहा था ना, बनने से पहले। नहीं नहीं, रिट्रेसमेंट सब्जेक्टिव केस है, रुको। ये समझ आया ना कि इफ मतलब कब तुम्हें एक्सट्रीम वो हो जाना चाहिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो इनवैलिडेशन। मतलब हमेशा डोंट कीप मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ओके इफ दिस फेल्स अगेन नेक्स्ट, इफ दिस फेल्स। एक एक्सट्रीम इनवैलिडेशन कभी कभी यू हैव टू सेट। कभी कभी आई वुड डेस्परेटली वांट अ लो और हाई टू बी द टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट ऑफ द डे। इफ दैट फेल्स, और इवन प्राइस, मतलब आई डोंट इवन नीड प्राइस टू रीच देयर, उससे अवे कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं आ रही है, तो दैट इज ऑलरेडी फेल्ड फॉर मी, और दैट इज फेल्ड। आई वुडंट थिंक दैट प्राइस वुड अगेन फॉर्म अ लो बिफोर दैट लेवल, है ना? यू नीड टू हैव एन एक्सट्रीम इनवैलिडेशन, बट एक्सट्रीम इनवैलिडेशन मीन्स वेरी हाई कन्विक्शन, तभी ला सकते हो। वेरी हाई कन्विक्शन कम्स फ्रॉम एक्सट्रीम क्लैरिटी फ्रॉम डेली चार्ट, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स, हाई एक्यूरेसी, हाई क्लैरिटी सिंपली। अब आपकी चीज, आपने अभी कुछ पूछा, ये क्लियर है ना? Now this is exactly where last line where I would want the New York's continuation to happen away from there। इधर से भी फाड़ के जाओ, मैं मार चाहूँगा इसको। इमीडिएट ऐसे आ रहा है, मैं आइडिया ड्रॉप कर रहा हूँ ऐसे ही। मैं तो बुलिश देख भी नहीं रहा था, बट ये क्लोजर पे इमीडिएटली बेरिश, यस आई कुड थिंक। और ये भी मैंने बोला एम, वैसे चेक करना है एम की स्टोरी ली है उसने, ये ली होगी यार, चोर है वो, मुंबई भी चोर है। यार देखना उसने ES लिया है, एक बार देखना, फिर मैं आपके डाउट पे जाता हूँ रिट्रेसमेंट वाला, या उसने स्टोरी चढ़ाई है या नहीं कोई। अभी कोई स्टोरी नहीं, चोर है चोर। मे बी यार, वो थोड़ी इस वे में देखता है। ले लेता यार दोस्त, क्या करा तूने? चलो अब कहाँ थे आपका रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी यार वही सब्जेक्टिव है। अब ये वाला आइडिया में क्या रिट्रेसमेंट है ना, पहले तो इस चोर को ऑफ करते हैं, ठीक है?
सब्जेक्टिव है। सपोज 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 इसको एक दिन दो, जैसे रुको। अ, 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 मेरे को एक तो केस, दो केस पड़े हैं मेरे पास, पर जो दूसरा केस समझाना है, एक केस का मेरे पास दो एग्जांपल हैं, दूसरे केस की एक भी नहीं मिल रही। एक सेकंड दो। एक मिल गई, पर वो एक वोंट बी इनफ। कैन आई कंसीडर दिस? मे बी, प्रोबेबली। ये वाली, ये कर सकता हूँ, एक गुड वन। आई नीड टू। एक और मिल गई। ओके। यहाँ पे सबसे रिसेंट लेग बताना मेरे को, कौन सी है? ठीक है, एक चीज़ आपको पता है ना कि चलो, जो भी हम डेली रेंज का EQ मार्क करते हैं वो ये है ना, कि होता है मिड पॉइंट। तो ये दो तरीके से मार्क किया जा सकता है। एक होता है प्रीवियस डेली कैंडल, मतलब सिर्फ एक कैंडल होता है डेली कैंडल, मतलब मेरे वर्ड्स पे फोकस करना। और एक होता है डेली रेंज, मतलब डेली कैंडल्स की रेंज। ठीक है, वो डेली चार्ट की रेंज। और एक होगा प्रीवियस डेली कैंडल सिंगल की रेंज, है ना? फर्क है तब। प्रीवियस डेली कैंडल को ही मैं जब एंटिसिपेट कर रहा हूँ ना होल्ड करने को, तब मैं उस सिर्फ सिंगल कैंडल की रेंज यूज करूंगा। जब मैं किसी डेली कैंडल्स की रेंज रेंज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होल्ड करने को, है ना, तो मैं पूरी डेली रेंज, डेली चार्ट की रेंज को यूज करूंगा, है ना, rather देन ओके मैं बुलिश हूँ, ये होल्ड रहना चाहिए, तो दैट डजंट मीन ये होल्ड रहना चाहिए। ये रेंज है ना, ये फर्क है। अब मेरे को ये डेली रेंज, मोस्ट रिसेंट डेली चार्ट की लेग या बुलिश रेंज बताना। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। पास पास, बल्कि रेड कैंडल, ये ये या ये। डेट बताता हूँ, 22 जुलाई, 7 जुलाई, 1 जुलाई। 22 गुड जोश। ठीक है, दिस नाउ rewind this, now range becomes this, draw is open, है ना, ओपन ओपन। ठीक है, this I could actually trust holding। कुछ फ्रेमवर्क भी है रेंज के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ब्रेकआउट कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, और रेलेवेंट लेवल से आई कैन एक्चुअली यूज दिस टू ट्रेड में। बस सामने एक रेलेवेंट स्विंग है, वहाँ पे प्रॉपर जैसा रिएक्शन चाहिए। इंग्लिश में क्या वर्ड होता है इसका? एक सेकंड दो, नहीं तो बाद में देखूंगा। वहाँ पे जो रिक्वायर्ड, फिर एक और वर्ड बोल गया। क्या चाहिए यहाँ पे, रिक्वायर्ड क्या चाहिए? हिंदी में भी क्या बोला था? यहाँ पे सर्टेन क्या चाहिए? समझ जाओ, चलो अब मैं बाद में याद करूँगा।
क्या मेमोरी है वाकई कि जो भी हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क चाहिए वो बन जाए। फ्रेमवर्क तो नहीं बोला ना, पर छोड़ो, है ना। बाकी आई कैन एक्चुअली ट्रस्ट दिस होल्डिंग एंड ट्रेड अवे फ्रॉम दिस, है ना। तो नाउ 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 इस सीन में अगर आई वांट रिट्रेसमेंट टू हैपन, वुड आई वांट रिट्रेसमेंट टू हैपन टिल प्रीवियस डे लो? डेली रेंज का सब्जेक्टिव है ना, अब आई वुड वांट इट टू हैपन बिटवीन जस्ट प्रीवियस डेली रेंज एटलीस्ट, क्योंकि इफ इट ऑल द वे कम्स टिल देयर तब मैं तो इसको मोर ऑफ अ रेंज है, रेंज लो कंसीडर करूंगा, है ना। आई वुडंट इवन वांट प्रीवियस डेज रेंज टू बी डिसरिस्पेक्टेड, तब मैं रिट्रेस में चाहूंगा विद इन प्रीवियस डे रेंज, है ना। स्टे अबव दिस सॉरी, विद इन प्रीवियस डेज रेंज क्या इसने एक्चुअली लिया था? इक्वल, यू कैन व्यू दिस एज a retracement from here or within previous days range, हाँ। सर अब यहाँ पे हम प्रीवियस डे लो एज ए रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि डेली रेंज का सब्जेक्टिव है। डेली रेंज कैसी है? डेली रेंज में कैन यू एक्सपेक्ट इस रेंज में ऑल द वे टिल हेयर रिट्रेसमेंट? नहीं। अब आई वुड वांट द रिट्रेसमेंट टू हैपन विद इन द प्रीवियस डेज रेंज, तब मैं विद इन के अरेज ढूंढूंगा, है ना। विद इन का अरे ढूंढूंगा, डन है। बट ये आइडिया भी मेरे को डेली चार्ट से होना चाहिए। जस्ट बिकॉज 4 आवर पे था डजंट मीन यहीं से जाना चाहिए था। देर वुड बी केसेस 10 पड़े होंगे मेरे रास्ते में, आई वोंट केयर अबाउट देम, सोचते रह जाओ। क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी डज दैट की दिस कुड बी द रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव। निशांत भाई का था एक बार ये डाउट शायद कि रास्ते में इतने आ रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, आप पहले वाले पे कैसे इंटरेस्ट? दिस कुड बी द, दिस कुड बी द टिल क्लैरिटी डेली चार्ट से। यहाँ पे क्लैरिटी क्या कि मेरे को देखना ही विद इन प्रीवियस डेली रेंज है। एक के समझ आ गया? आप इसी एग्जाम्पल का एक और गए वो तो चलो, ये रिट्रेसमेंट टू द एक्सपेंशन वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना नाउ एटलीस्ट। अब इसको डैश डैश देते हैं, ऐसे डेली चार्ट आसान तो कर दिया मैंने, है। गुड जोश। कहाँ थे हम? यहाँ थे यार, गुम हो गया। यहाँ थे, यहाँ थे, है ना। हाँ, 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 एक और केस। डेली रेंज क्या है? एक चीज जो मेरे को दिख रही है, चलो वो मैं साइड बाय साइड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैं मार भी चला दूंगा, ठीक है। ये एक चीज मेरे को दिख रही है, मैं साइड बाय साइड मार्क कर रहा हूँ, बट बिकम्स द ड्रॉ लॉजिकली, है ना। तो नाउ रिसेंट रेंज हो गई मेरे लिए, ये है ना एटलीस्ट, क्योंकि नाउ हाउ आई वुड व्यू दिस, इधर से इधर से इधर से इधर, तो ये यहाँ से ऐसे, हाँ। तब अगर रिट्रेसमेंट, मेरे लिए तो एक्सपेंशन होनी चाहिए, पर एक्सपेंशन से पहले रिट्रेसमेंट होगी, इट कैन हैपन, इट शुडेंट वो बोल सकते हैं, बट इट कैन हैपन, है ना। बट इफ इट वुड हैपन विद इन द प्रीवियस डेज रेंज होनी चाहिए ना। दिस यू कैन कंसिडर एज अ वैलिड रिट्रेसमेंट, है ना। प्रीवियस डे लो से भी चल जाए अगर, या डायरेक्ट चल जाए, क्योंकि मेरा डेली चार्ट का पर्सपेक्टिव मेरे को माइंड में क्लियर है। इतना डीप को नहीं मैं कंसिडर करूंगा, देन आई वुड रादर कंसिडर दिस एज अ रेंज, आई रेंज लो। रिट्रेसमेंट शुडंट बी टू डीप, देयर इज अ रीजन। मैं लाइव चार्ट एग्जांपल दे दूं, चलो। लाइव चार्ट मैंने क्या बोला था, मेरा को सबसे बेस्ट डेली फ्रेमवर्क अभी किस पे दिख रहा है? वाईएम फेल्ड this much ranging, swept immediately back. This 100% I would view as a retracement. Retracement objective, previous yellow best,
good reaction. Now I would want to be bullish next day. मैं तो चाहूंगा नहीं एट द फर्स्ट प्लेस रिट्रेसमेंट हो, बट अगर हुई ये हाई से दूर क्लोजर तभी मैं बॉडी का कर रहा हूँ। तो विद इन प्रीवियस डेज रेंज भी अपर हाफ में हो, डीप रिट्रेसमेंट आई वुड रेदर not trust the range to hold. Deep retracements don't like allow for worthy expansion. वर्दी एक्सपेंशन फ्रेमवर्क में आपने देख लिया जहाँ पे एक्सपेंशन लार्ज, रिट्रेसमेंट कम. डीप रिट्रेसमेंट्स aren't a good sign. Next day deep retracement happened, still could have been framed, but can see the willingness, then you can anticipate the range not actually holding, है ना. तभी मेरे को बिल्कुल ही ओके नहीं था मैं इससे अवे जाने में. लाइव एग्जांपल ही होगी ना, और अभी भी मैं 100% नहीं कह रहा मैं इससे भी अवे कर सकता हूँ. ये SMT अगर वैलिड है मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर SMT नहीं होती तो मैं मे भी चाहता यहीं पे आ जाए, क्योंकि आई वुडंट हैव वांट दिस टू फेल एट द फर्स्ट प्लेस. एक्सट्रीम इनवैलिडेशन वाली बात थोड़ी देर पहले गई थी, क्योंकि अगर जाना मैं तो पहली बात बोलूँगा ज़्यादा इसके पास ही नहीं आ. ठीक है, अगेन दिस यहाँ से यहाँ आया है, तो अगर डीप आ रहा है, इतना डीप मैं चाहूँगा नहीं आया, डीप आके इमीडिएट रिएक्शन दिखाए तो ही पहला प्लेस मैं कंसिडर कर रहा हूँ. डीप आने के बाद मैं कंसिडर ही नहीं करता यहाँ से, स्टिल इससे अवे ट्रेडेबल. डीप आने के बाद इमीडिएट एक्सपेंशन अवे, दैट वाज द ओनली रीज़न आई वाज यूजिंग दिस. बट वो इमीडिएट एक्सपेंशन अवे वाला लॉजिक ही फेल हो गया. तो इसका यहाँ पे आना एक इनवैलिडेशन था मेरा इसकी तरफ, तो ये फेल कर रहा है, मतलब ये भी फेल कर रहा है. तो आई वुडंट इवन लुक फॉर अ मैनिपुलेशन हेयर अगेन फॉर द सेम फ्रेमवर्क. आई कुड कंसिडर अगर इधर वाली SMT वैलिड हुई दूसरे एसेट पे. ये क्या है, डेली चार्ट की क्लैरिटी अपने आप को देना विदाउट इवन एक्चुअली लुकिंग एट द ऑरली. कल इससे नहीं मैं कुछ बोलूँगा, ये अगर एक्चुअली जिस हिसाब से बन रहा है ऐसे बने देन यस. ये वाले लोज है ना, ये वाले लोज 20-21 है ना, तब मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ. गेटिंग माय पॉइंट. ये लाइव चार्ट एग्जांपल थी. देन आई वुड रेदर सी इट एज अ रेंज, प्रीवियस डे लो तक आ जाए या डायरेक्ट चल जाए. गुड, ठीक है. अब ठीक है, अब इस रेंज में रिट्रेसमेंट अगर नाउ कैन यू कंसिडर सेम डे भी, क्या पता प्रीवियस डे लो है ना, या यहाँ डेली रेंज का पर्सपेक्टिव है ना. वो तो चलो एवरेज डेली रेंज के हिसाब से वो पहले ही लार्ज वीक होगी, तो फ्रेमिंग इट बैक टू द ओपनिंग प्राइस वुड हैव बीन द पॉसिबल चॉइस. बट विक अगर कम तो है ना, पर नेक्स्ट डे तो एटलीस्ट अब डेली रेंज के हिसाब से स्टिल अगर इसने होल्ड करना यहाँ तक वैलिड है ना, वुड हैव बीन कंसिडर. सपोज इसके बाद रिट्रेसमेंट मैं नहीं चाहूँगा ना यहाँ तक, मैं तो चाहूँगा विद इन प्रीवियस डेज रेंज है ना. अब पूरी फेल होगी नाउ, अब ये रिट्रेसमेंट इस रेंज को होल्ड कर रही है नहीं, so that I would rather consider a reversal from there, है ना. And that what I would see, retracement of that reversal, expansion, retracement, reversal. ये तो चलो टॉपिक से भटकते नहीं. दो एग्जाम्पल मैंने दे दी कि कब विद इन द प्रीवियस डेली रेंज. अब ये समझ आ गया ना कब विद इन द प्रीवियस डेली रेंज. अब दो तो मेरे पास फाड़ एग्जाम्पल है कब विद इन नहीं. लैपटॉप बैटरी उड़ने वाला है. ठीक है भाई, मेरे को थोड़े दिन बाद आपके ना एक फेवर चाहिए होगा, मेरे को ऑन स्पॉट याद आया. ठीक है. टन 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 टन. Not the best, but not the worst. Expansion, this much expansion, continuous expansion. Would you still look for retracement of that trick within previous days range? है ना. I wouldn't look it all the way till there, but minimum previous day लो, मजे से वाला सीन है ना, मजे से. previous day high पे reaction दो मजे से, बेरिश
दैट डजंट मीन मैं पूरा फ्रेमवर्क मैं बोल रहा हूँ यहाँ से बेरिश रिवर्सल. नाउ डू यू गेट द पॉइंट. कब प्रीवियस डे लो तक. अब सेम 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 इसी के बाद वेयर इज द नेक्स्ट लेग. ये मेरे को बोल रहा है, आपको भी बोल रहा है टुरु ब्रेकआउट है ना, टुरु लाभ. ठीक है, नेक्स्ट लेग दिस. यू वुडंट वांट प्रीवियस डे लो टू बी वायलेटेड. विद इन प्रीवियस डेज रेंज है ना, विद इन प्रीवियस डेज रेंज. ठीक है, वैलिड है. इधर तक ही गया था चोर, इधर नहीं गया था. दुख भरी कहानी है मेरा का, दुख ही रखना अच्छे रहे. अगली एग्जांपल वेयर वेयर. क्या बताए, पहले ही हिट कर गया हो तो रिस्क नहीं लेते हैं ना. नो रिस्क ओनली इश्क. हाँ ठीक है, नो आई एम राइट. यार गलत कर दियो, कर दियो. मैं कुदर था, गलत ऐसा का ही हुआ. मैं इधर नहीं था, इधर था. इसके बाद भी दो कि आपको अब डाउट आना ही नहीं चाहिए, ऐसा फाड़ के रख दें डाउट. डेली रेंज क्या है, डन सीन है. समवट यू कैन कंसिडर एक्सपेंशन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट वहाँ है इनफ सेपरेशन. यू कैन कंसिडर रिट्रेसमेंट बैक विद इन द प्रीवियस डेज रेंज और प्रीवियस डे लो इटसेल्फ. क्योंकि डेली रेंज को कंसिडर किया करो, डेली कैंडल इटसेल्फ को नहीं. डेली चार्ट, डेली चार्ट मीन्स all this. Daily chart doesn't mean just looking at the daily candle. Many people understand it the wrong way. They just look at the daily chart like this. Daily chart means this is a chart. You don't look at just one single 1 minute candle when you say you are looking at 1 minute chart. Look at 30, 40, 50, 100 है ना at least. Same with daily chart, right? So the daily chart here says okay. Retracement till there logical. Could have been framed. अब मैं पहले क्यों गया, मैंने देखना था कि चलो कुछ नहीं, दोनों में सही था मैं अपने आप को कंफ्यूज कर दूंगा वाकई. कुछ नहीं भाई, हंसेगा कोई नहीं. ठीक है, कोई नहीं हंसेगा. बेस्ट स्पॉट वेयर रिट्रेसमेंट कुड फॉर्म है ना, होल्डिंग. क्या अगली एग्जांपल इसी में थे? नहीं नहीं, अब तो यूज नहीं, पर इक्विलिब्रियम ही इनफ है. दिस एज द ऑब्जेक्टिव मिनिमम है ना. अब अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे इस रेंज की ना, विद इन प्रीवियस डेज रेंज और प्रीवियस डे लो. फास्ट 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 फास्ट. even though if you don't want to immediately consider this as a reversal from here, क्योंकि this is something you can actually anticipate can be held है ना विद इन द. यार क्या सिंपल है यार, प्रीवियस डे लो विद इन प्रीवियस डे रेंज. क्यों विद इन प्रीवियस डे रेंज, फिर बोलते प्रीवियस हब है ना. मैं इक्विलिब्रियम पहली बात यूज ही वहाँ पे करता हूँ जहाँ पे आई कैन एंटीसिपेट प्राइस इस स्विंग तक आके आई कैन स्टिल ट्रेड अवे फ्रॉम दिस. अ न्यू डेली स्विंग कैन फॉर्म अवे फ्रॉम दिस. एक बार मेरे को आदि बहन ने अगले थोड़े दिनों की रेंज का पूछा था, आप उसका इक्विलिब्रियम या डेली रेंज का क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि व्हेन आई सिंपली डू नॉट. अब सपोज ये ड्रॉ है, मैं जैसे जो यहाँ से बनने वाली है उसका क्यों एंटिसिपेट करूँगा ये होल्ड करे यहाँ तक, है ना. तो मैं यूज़ ही उनका करता हूँ. तो पहली बात, अगर मैं चाहते नहीं होल्ड करे तो मैं पूरी रेंज को ही सीधे ड्रॉ मानूंगा ना, उसकी तरफ इमीडिएटली मैं रिवर्सल के लिए लिखूँगा. यहाँ पे इमीडिएटली मैं इसको ही रिवर्सल नहीं देख सकता. लो हैंगिंग फ्रूट रिट्रेसमेंट स्टिल प्रीवियस लो राइट. अगेन अगेन. अरे यहाँ से गया था या यहाँ से गया था, यहाँ से गया था. अब ये दिस इज द रेंज आई वुड वांट टू होल्ड है ना.
डेली चार्ट पे इक्विलिब्रियम डिस्काउंट यूज करने का भी तरीका मस्त आ गया होगा आप लोगों को, है नहीं? दिस इजंट व्हाट आई वुड एंटिसिपेट टू होल्ड। अगर मैं कोई हाई ही नहीं होल्ड करना चाहता तो मैं उसकी रेंज ही क्यों होल्ड करवाऊंगा एट द फर्स्ट प्लेस? दिस हैपन्स। मैं तो पहले ही यहाँ चाहता हूँ क्योंकि मैं इनमें से किसी से अवे नेक्स्ट स्विंग ऐसे बने, मैं ट्रेड अवे इनसे वैसे नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट बस थिंक दिस वे, आपका टारगेट वहाँ होना चाहिए वेयर अ डेली चार्ट्स नेक्स्ट स्विंग और पॉसिबली अ नेक्स्ट स्विंग could form which you can use to trade to the opposite direction। समझेंगे? उससे पहले कहीं नहीं। क्या मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ ऐसे मैनिपुलेशन? नहीं। क्या मैं यहाँ से? नहीं। सेम सेम यहाँ से कर सकता हूँ मैं, जो कि आज करा। तभी ये है ऑब्जेक्टिव। दिस मच विलिंगनेस। हाँ, अब बेट करो, बेट। मैं मार भी चला दूंगा। रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव विद इन प्रीवियस डेज रेंज और प्रीवियस डे लो। देखिए भाई, सिर्फ आपसे और कोई नहीं बताया। जो हो गया उसको याद रख के बिना लॉजिकल आंसर, मतलब जैसे अभी हमने एक शॉर्ट प्रैक्टिस है ना प्रीवियस डे लो, पर आई कैन सी प्रीवियस डे लो बीइंग अ फेलियर स्विंग, कि प्रीवियस डे लो मैनिपुलेट होता है और ये नहीं होता। आई कैन नॉट एक्चुअली कंफर्टेबली ट्रेड अवे फ्रॉम दिस, है ना? एंड दिस स्टिल अलाइंस विद द आइडिया। सो दिस, नाउ दिस, now you would have the answer within the previous day's range or previous day low, है ना? previous day low, right? गुड जोश। डाउट पूछोगे तो क्लैरिटी आएगी। पूछा करो दोस्तों, पूछा करो, क्योंकि मेरे को नहीं पता मोस्ट टाइम्स what are the exact problem you could be struggling with, and that would be very easy for me because I would have worked over it। देन हाँ छोटे वीर, आपने वो देखा अपने जो स्पॉटिफाई खोलो, गाने का नाम क्या था जो लास्ट सुना? क्या कह रहे हो? ये गाना सर्च नहीं किया था मैंने स्पॉटिफाई, यूट्यूब? स्पॉटिफाई पे यार। तो आपने फ़ोन भी करा? सॉरी, सेशन टाइम मेरा फ़ोन थोड़ा मेरे को सुनाई नहीं देता ना। चुप कर, कब का किया, अभी नहीं किया है। अच्छा, स्पॉटिफाई पे आपने लाइक सॉन्ग्स में डाला जो? नहीं, फिर सर्च में देख, सर्च में देख। लेवल्स, हैं? लेवल्स, किसका है? सरदार खेड़ा रस हाँ ठीक है, ओके गैप हो जाओ। अच्छा, ओके। जिस पे आपने फोन निकाला, चोर तीनों शूटर हो गए, काम निकाला गया। ओके नाइस। चलो कोई बात नहीं। हम कहाँ थे पता नहीं, डाउट पे थे हम, टास्क पे थे। टास्क टास्क टास्क। अब नाउ यू विल गेट एटलीस्ट प्रीवियस डे लो, उसके बाद बोथ साइड कुड बी कंसिडर्ड। तो प्रीवियस डे लो तक मजे से शॉट। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ कुड यू प्रिडिक्ट दिस सीक एंड डिस्ट्रॉय बिफोर हैंड, बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स, है ना? सो दैट यू कैन cut this asset off your list. How? Simply have a high time frame bias. This asset is what? YM. Rewind today's daily candle. YM. No clarity. If I would have wanted something to form for me, I would have wanted it to immediately displace away from there. इतना डीप तो मैं पहले चाहता ही नहीं आया, पर अगर आके एक्सपैंड कर रहा है तभी मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, है ना? ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ बना है कि इसकी मैनिपुलेशन से आई कैन अगेन। ये ऐसा है कि एक्सट्रीम इनवैलिडेशन क्यों ये है, क्योंकि पहले ही इधर आ गए। तो मैं तो चाहूँगा नहीं इधर तक, पर इधर से इमीडिएट मेरे डायरेक्शन में एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन करके ही मैं इसको बोल रहा हूँ चल तेरे को हामी दे दी। पर ये एक्सपेंशन भी अगर होल्ड नहीं कर रही तब तो मैं आई विल व्यू दैट वे। एक्सपेंशन भी होल्ड नहीं कर रही जब,
जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, नहीं होल्ड कर रही है ना, सिंपली आई हैव नो बायस, so why would I even frame? Daily chart doesn't mean just daily candles कि previous day high sweep to that, previous day low sweep to that, previous day high sweep you cannot short because you do not have a high time frame bias. Daily chart says this or this, previous day high, previous day low hold very much relevance, yes, but there are situation cases all the time, not all the time, many times. This wasn't even on my list. I simply knew nothing which I could do to frame this. I had no clarity. So I was simply waiting to get clarity on the daily chart first, not on the M3. M3 it may look too good manipulation once it displaces through that. है ना? Immediately turns against. Now actually answered this in very depth. Can watch my previous recap of 29th January. And normally I don't trust this not so small but not so large retracement, but it had certain framework built prior for it so that I can actually trust this small range retracement, that I can capitalize on the expansion ahead. That reason is also mentioned in that video. We'll see if RTY is able to form consolidation reversal weekly profile from here, relevant swing. I cannot trade away from this, I cannot trade away from this, I cannot trade away from this, I cannot trade away from this. If I cannot trade away from something, I simply can't trade. I simply can't trade, why would I trade? But from where I can trade away from? Here. If something X, Y framework form, the main idea is always finding a point which you could use to trade away from. This is simply, I said I would see, but the task was, what if it fails to form that profile? Like I was saying, consolidation reversal weekly profile is Monday, Tuesday, or Wednesday. It consolidates Thursday, manipulates either side of the range, Friday expands. Like what you call AMD, है ना? Just on the daily range, weekly range. But what if it doesn't manipulate? That was the fails to form that profile. That was my question, my task. आप चोरों ने आंसर ही नहीं दिया है. चलो लेट मी आंसर. क्यों आंसर? अभी एक दो बंदे तो होंगे, एक दो ट्राई तो करो, उसके बाद अपन जाएगा सोने 11 बजे तक. भाई जी मेरी BTC वाली ट्रेड देख लेते. आई डिड आंसर यू, यू जस्ट डिडंट पे अटेंशन. ओके, आई वुड टेक इट आफ्टर दिस टास्क. Daily chart seems much simple, but even I haven't mastered the daily chart. I am on the way. You can extract way much more from the daily chart as you would think you can. Daily chart is so underrated, underlooked, underestimated. I used to spend just 1 hour of my day on daily chart, just daily chart. No idea. Then we will trade the Trubek out it with the downside for an expansion. Take good Josh. Price is in a ranging condition. We do not trade this due to a reason. We cannot tell if we can trade away from this or we can trade away from this. So we can do not try to predict if price would break this side of the range or this side of the range so that we can have them as an objective. Now you do get an answer that why we actually like do not most times try to trade consolidation, because we simply do not have something we can tell okay I am comfortable trading away from this within the range towards the range extreme. But when one end of a range extreme gets hit, we do have a possibility that now something can form which we can use to trade away from.
two things can happen. Either it gets manipulated, okay, we can trade away from this towards it. Okay, this gets truly breakthrough. I can trade away from this range as a whole. And in both cases, you can expect expansion because price always spends time either in small ranges or large ranges. सेम चीज जो ES का ओवरली 15 मिनट चार्ट बढ़ जाता है ना, स्मॉल रेंजेस टू लार्ज रेंजेस टू स्मॉल रेंजेस, ऐसा बन रहा है तो अच्छा, कल फ्राइडे है, तो जोश क्लोज इधर तक हुआ तो मैं क्या सेम डे रेंज आई मार सकता हूँ अगर इधर ही क्लोज हुआ? आई कैन। अगर नीचे क्लोज हुआ, नहीं यार, थोड़ा ऊपर हो गया प्लीज। 600 भी मार लूंगा मैं, नो वरीज। इस पॉइंट पर लो ऑफ द डे यहाँ हो, बात वो है, क्लोज तो तू यहाँ भी हो जा, लो ऑफ द डे यहाँ तक आ गया फिर थोड़ी 600 पॉइंट भी मैं मार लूंगा। हाँ, मतलब लो ऑफ द डे कहाँ बनता, बात वो है। तो यहाँ कभी लो इधर आ गया तो करता है। ओके RTY डेली चार्ट अगेन, मैं मार चला दूंगा गलत ऐसे। मैनिपुलेशन from where we can use this to trade away from, but before today we didn't have anything we can use to trade away from. This was the objective. Once this manipulation was done from there, and why I was doing this as a manipulation, not retracement, without even using this, you can simply see. I would have wanted a reaction at previous day low for me to consider this as a retracement, but the only array which you would have wanted it to hold for retracement simply displays through. मैंने ये भी नहीं देखा, I just saw the conviction, the way it is going away from there. Didn't even need to look at this, didn't even need to look at this, just muscle memory of the eyes. This becomes the objective, price reversing from there. Next trade, yes, I could have looked to short till the thing lies upon getting a thing which you can actually use to trade away from. Intraday range, and once price displaces away from this, you could use this to trade away from. Huh? But this is the objective. You just are oblique to trade away from this, है ना? And this, if price holds this, deep retracements aren't ideal, right? Okay, this day as well, you could have looked to trade shorts, right? And a weekly open could have been an objective, and maybe this, but yeah, next day did align, didn't retrace much, just open low, and hey, yes, ये SMT थी, हाँ? Not the best low time frame framework, I do remember now, but high time frame, yes, could have been used. Both days valid. You could have, you were looking for shorts was valid. Now this day FOMC, but even if it wasn't FOMC, 9 a.m. I do remember. I wouldn't be comfortable even though 9 a.m. if I wouldn't have marked this. Yes, you maybe would have tried intraday range to stay blind. It can reward you 1 out of 10 days, but it would suck many things out of you, not just the dollars, but your mental capacity as well. The other 7 days by being blind like this. So yeah, stick to your approach and don't get like manipulated, mentally manipulated by 1 2 scenarios where if you would have broke your rules, you would have rewarded. It is an illusion, simply what you can call if अगर सब इसको नहीं समझ आएगा, माया है ना, एक बारी छल करवाया जाता है so that you get manipulated, that doing the wrong things actually reward you, so that
they can reward from you for the next 7 or 8 times. It should actually make sense. Now, where were we? We couldn't trade away from this, so yeah, not a day where I would consider. See, too good expansion, है ना? Too good expansion. So manipulating many people and incorporating that habit in them, you can actually break your rules. And yes, there was no SMT, let me tell you, and nope, no SMT with the micro mini assets as well. M2 पे कहाँ है? No SMT here as well. I was properly looking at it. No SMT anywhere. Okay, no asset manipulation, not nothing. So next day, I simply cannot trade away from this. Simply, I can't, because this is now more of a ranging. Deep retracements aren't ideal, right? I do not know if I could trade away from that, and this isn't something I would use to trade away from, because I do not know if this could hold away from this and this could hold away from this. Neither could I trade away from lows, neither can I trade away from highs. This is the scenario where you should stay out. See, it rewarded those people this day as well and this day as well. इस day की continuation भी है ना. अगर लो टाइम फ्रेम भी देखूँ मैं, क्या आज मिलता कुछ? मे बी यस, है ना. यस, टू द फुल ऑब्जेक्टिव एज वेल. मैं बोल रहे M4, M3 भी अच्छा था, पर M4 दिखाओ फास्ट. मैं मार चलाऊंगा अगर रीलोड करना पड़ा. गुड है भाई, M3 में भी कोई कमी नहीं है, बट वही है ना, एक दो दिन दैट दे कैन use you for the next 8 days the same framework. But I would have loved अगर ये दुख थोड़ा सा होता, पर कोई बात नहीं, इतना सा होता. Rules are rules. There would be conditions, there would be frameworks specially set for you in many phases of life, that okay, if you can do adharm and even no one is looking and you can get rewarded from it, to actually know your intention. If you just are following dharma for the sake of validation of the society, or you actually wanna do it more like a test, self-realization test. I would rather die. Simply just, it is how I am. I would rather starve. Not just about this field, but more so life-based. So yeah, just about personality, and personality plays a big role in this field. That's why I keep talking about it, or it naturally comes out of me, I would say. So now, here could form a point, a swing where I could use to trade away from, or even if it doesn't, let us get back to the daily chart again. I explained that how and why I couldn't trade away from lows, couldn't trade away from highs. But is the framework from here valid? Can price expand without actually manipulating this? Yes, expansion to consolidation to then again expansion. It can. Doesn't need to be manipulated here. Just that within the range, I won't partake. Can I frame this reversal away from here? Yes, but I can't from this. So if price found manipulation here, okay, I would trade bullish. If price doesn't, fails daily candle closure, how I would view it? Small ranges breaking through it truly, I can actually trade away from this range. Continuation, clear objective in front of me. I got it. If the profile wouldn't have formed, I still
opportunities are there at the edges of the consolidation. अब मेरे हिसाब से तो फॉर्म कर रही है ये वैसा, यस गुड। इसको बोलो ऐसे ही रहे कल के लिए। अगर ये समवट कल का लो आता है यहाँ तक 42 कहाँ तक होना चाहिए, मैं 45 भी कर लूँगा क्योंकि रेंज ब्रेक करिए। आई कैन एंटिसिपेट लार्ज रेंजेस इवन वे पास्ट एवरेज रेंज। 50 कहाँ है, हाँ इतना आ जाना ठीक है। मैक्सिमम 2650 तक लो यार, ये आनी चाहिए। दिस मच आई कैन गो वे पास्ट एवरेज रेंज due to the fact small ranges I have spent almost 4 days just got out of the range, got the fuel, so now इससे तो ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे ना, मतलब कंसोलिडेशन में इतनी रेंज बना रही है, एक्सपेंशन में इससे ज़्यादा ही लॉजिकल डिसीजन। और एक वो भी स्मॉल रेंजेस टू देन लार्ज रेंजेस। वे पास दिस आई वुडंट ट्राई। वाई है ना, और माई पॉइंट। बट टिल हियर यस आई कैन। डाउट डन, आई गेस सो यस। ये भी मार्क कर देते हैं। कल लेट भी हो गया, मेरे को इसकी क्लैरिटी है, मेरे को वायन की क्लैरिटी है, और उसको एन की क्लैरिटी आधी दूरी। यूएस को कल ही देखूंगा। अब क्या ये लास्ट टास्क था ना। रोश भाई आपका नाम दिख गया, गुड बॉय। अभी 5 मिनट ऊपर हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। कोई और डाउट है कुछ भी डाल दो, देन वी विल ट्रेड द यस गुड आंसर। M5 लिख देते तो हम भाई खुश हो जाते, बट नो प्रॉब्लम। डालते हैं ओके हियर। To your advantage, I too was looking at daily chart of this because when I came around 2 p.m. yesterday at the charts, it was just waiting game for 1 hour for me. So I simply was messing around with the daily chart of BTC and ETH, and then I came to a conclusion. I wasn't actually comfortable trading away from these, है ना, but for a moment है ना, इससे अवे I can trade, but इसकी continuation where would I want that to form here। तो हाँ डेली चार्ट में ऐसे करना, ऑर्ली चार्ट में आई वुडेंट डू दिस की ऑब्जेक्टिव से है कि यहाँ से मैं चाहूँगा ऐसा करना। स्टिल दिस इज डेली चार्ट ना वैसा सीन, पर उसके लिए फिर थोड़ा तो अटपटा सीन है ना कि ये ड्रॉ ऐसे हैं और इनको फेलियर स्विंग छोड़ के, है ना। मैंने कहा एक्सट्रीम इनवैलिडेशन, प्रीवियस डे लो पे फॉर्म हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। इंट्राडे आई हैवंट लुक, बट आई कैन सी प्रीवियस डे लो पे ये नहीं हुआ, है ना, सिंपली नहीं हुआ। तो मोर सो रेंजिंग एक्सपेंशन टू रेंज, ये नहीं हुआ तो मैं ये भी बुलिश नहीं मारूंगा। इसमें ये यूज करने का सेंस नहीं बनता इवन द लुक मैनिपुलेशन मोर सो रिसेंट रेंज एल्स टू द एक्सट्रीम ड्रॉ। ना इसकी मैनिपुलेशन से आई वुड बी कंफर्टेबल ट्रेडिंग अवे, ना इसकी मैनिपुलेशन। ओवरऑल आई वुड वांट them to reach here maybe a month later, maybe a week later, but I would want them to reach here। तो अगर मेरे को इनसे अवे ट्रेड करना, आई वुड रेदर व्यू दिस इन दिस वे, more so current range focused। current range is more relevant than these failure swings coming in the way। getting my point। और इसमें भी अगर लॉन्ग मार रहा था, पर मैं आई कुड एक्चुअली ट्रेड अवे फ्रॉम दिस एज वेल द वे दिस ऑन, है ना। आई कुड शॉर्ट दिस सिंपली, बट आई नीडेड रास्ते में आ रहा फाड़ के जाओ। I mean, I wouldn't have expected all the way till there in the same day। 2439 25 हो अगर मान लो वीकली ओपन आई कुड हैव, है ना। दिस I said I could have used to frame shots,
ओबी सिंह होल्डिंग, ओबी सिंह से जा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे भी फ्रेमवर्क इस हाई से अवे काइंड ऑफ, मतलब स्टिल डीप बैक बट काइंड ऑफ बेटर देन ईएस। ईएस बोल रहा हूँ क्या है, ईटीएस एटलीस्ट है ना। सी दिस not comfortable trading away from this or trading towards this, just ETH का idea but higher time frame still towards there। immediate invalidation, देखिए भाई दो तीन चीजें सीखी, एक ये इमीडिएट इनवैलिडेशन वाला सीन भी सीखा है ना आज, और एक डेली रेंज को बेटर कैसा कर सकते हैं, लाइक एक्सट्रीम इनवैलिडेशन जो उसके बाद मैं कंसीडर ही नहीं करूँगा आइडिया, तो वही चीज़ें क्लैरिटी देती है। जस भाई कैसन बा, राधे राधे। डेली चार्ट में बहुत सारे राज हैं, बस कोई मेहनत तो करे उसके ऊपर। डेली चार्ट नथिंग इज एज रिवॉर्डिंग एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट सीएल आरटीवाई, मतलब सीएल भी देखो। राधे राधे भाई। राधे राधे भाई जी, कैसन बा? बहुत अच्छा बा। बहुत अच्छा बा। मस्त बा। मस्त बा। कब उठ बा? अच्छा क्लैरिटी बोल भाई क्या है? बीच में से भाई एआई, भाई एआई को खा के, भाई देखो हमारे इतने दम है भाई में, भाई एआई को खा के देखो। हाँ जस भाई, उठबा कब उठबा? 7 बजे उठवा। 7 बजे? आपके साथ साढ़े मतलब 6 यहाँ, उठवा था तो 7 आपके 7 मई मतलब यहाँ के 10 AM है ना, न्यूयॉर्क वालों के। हाँ न्यू ईयर। हाँ मतलब सब कुछ काम हो चुका था। हाँ। लेकिन और देन बोलो बोलो। आज ड्यूटी थी उसकी बिन रखने थे बाहर घर के, वो ओके, फिल करने थे। तो मतलब आप तो चाहकर मैं भी देख नहीं सकते थे? हम्म। ओके फिर ठीक है, एक बार देखना जब फ्री हो गए ना, मस्त थे आज। आपके आपका देख हाँ जी। क्या बोल रहे थे भाई? मैं आपकी स्क्रीन शेयर की थी ना आपने, मैं हाँ। उसमें से ही अपना स्पीक और माइक कर रही हूँ। ये तो मैं बोलता नहीं तो आपको याद नहीं आता, फिर अभी उठे नहीं हो, मतलब नहीं उठ के आए हो, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मतलब नीचे से ना मैं जो ऑडियंस है उसमें अपना नाम था मेरा, तो मैं उसे राइट क्लिक करके स्पीक का दुबई जा रहा हूँ। होता है कहीं कहीं। आज अपन के साथ भी जैक हो गए, मतलब को हुआ कुछ नहीं, क्या? मिस हुआ बस, टू गुड फ्रेमवर्क मिस हुआ तो अच्छा नहीं लगता है। कौन सा आरटीवाई मिस हुआ कि वाईएम? एनक्यूईएस। वाईएम तो नहीं मिस हुआ। एनक्यूएस क्या था आज? हाँ हेम भाई ने लिया एटलीस्ट, चलो एक कुछ है कि किसी बंदे ने तो ले लिया, पर एक मेरे को है आई कुड हैव डन समथिंग बेटर, बट उसका मेरे पास काइंड ऑफ जस्टिफाइड रीजन है। मैं लैपटॉप से दूर था, मतलब ओम भाई चेयर पे, मेरे को काम था ओम भाई से घर पे कुछ है ना, तो ओम भाई इधर आए थे, तो मैंने कहा ओम भाई ऐसे मैंने चार्ट ही नहीं खोलने, पर थोड़ा डेली मेरे को क्लैरिटी है तो इसलिए आप बात करो, हम बात करते हैं साथ साथ। में खड़े होकर चार्ट देख रहा था, तो वही प्रॉपर अच्छे से नहीं देख पाया, इसलिए मतलब वही है कि देखता हूँ भाई मैं। जीरो पोजीशन है। और आज मैंने टास्क भी फिर बड़े डाले, क्योंकि बाद में टाइम मिला जब मेरा और ओम भाई का काम हो गया, इनने डाले, इनका आंसर भी अभी वाले सेशन में डाला है। ठीक है सर, ये देखते हैं देखो, अभी आई थे। ये वाली पोजीशन देखी आपने अभी, ठीक है, हाँ जी सर। और ये पोजीशन इधर देखो फिर। डेली से दिखाओ तो वही दिखेगा, कुछ ऐसे नहीं नहीं पता ऐसे लगता ऐसे कुछ भी। देखो ना, वैसे वो देखी ये पोजीशन, यही सेम थी नहीं सर, उस बार रुकी ही नहीं है, ये देखो, फाड़ो 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 फाड़ो। M15 ऐसी सिंपल पोजीशन आपको भी फ्रेम करना अच्छा लगेगा, है ना? कभी कभी जो मैं एडवांस कॉम्प्लेक्स चल जाता हूँ वैसा आपको नहीं लगेगा अच्छा, शायद ओम भाई वाला आपको सिस्टम बन जाए आपके लिए, वो बेटर है नहीं? माइक उड़ गया आपका, वैसे मैं ये लास्ट, मेरा हाँ उड़ना मैं था बोल रहा हूँ नीचे ये गिर। वाली पोजीशंस आपके लिए बेटर हैं, जो कभी कभी मैं थोड़ी M3 M4 M5 या M1 कभी कभी, या वैसे हायर टाइम फ्रेम 15-30 ये बेटर 15:30 ठीक है, शांति से बैठेंगे, है कोई ना? चक्कर नहीं, लॉर्ड ये देखो, छोटी ये लेकर। सेम थी नहीं, ये देखो कहाँ गया, इधर है, ये वाली सेम है नहीं? 9:30 से पहले यस कितना सर। टाइम है, 9:25। ये वाला हाई प्रोटेक्टेड के बाद, उसके बाद देखो रुका ही नहीं है, ये देखो टुच 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 टुच।
आज न्यूज़ आई होगी भाई कोई इतना। न्यूज़ नहीं सर, डेली चार्ट देखो आपको समझ आएगा। इस थ्री हाइट। डेज ऑफ एक्सपेंशन टू अ हाँ। लेवल इस, देन हाँ जी काउंटर भाई, ट्रेड। ये हाई याद है मैंने आपको बताया था जिस हाँ जी, दिन, कि मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा। और एक मेरी वीकली प्रोफाइल याद है जो मैं बोलता था मेरा 100% विन रेट है जिस पे। वही बता रहे हैं आपको कि 3 डेज हम्म। कंटिन्यूएशन नहीं, टू पर सिर्फ थ्री सेम डेज डायरेक्शन, नहीं, मंडे ट्यूसडे कंटिन्यूएशन टू। वेनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे भी, हाँ, और एक ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव नहीं है तो यस। प्रीवियस डे हाई में मांगता हूँ, ऑब्जेक्टिव है तो ओके। पर अलग पोजीशन बनी थी भाई, क्या बनी, मैं नहीं ले पाया, बनी भैया तो सुबह थी। ही ले ले। हाँ जी भाई। मैं कई बार यही सोचता हूँ कि छोटी एक लॉट लेके ना, मतलब कि जब टाइम लगा तभी लगा के अपना बायस सही देखना हो बस। अच्छा, वो बायस की मतलब प्रीवियस डे हाई पे स्टॉप डाल दिया कुछ, है ना। हाँ हाँ। ट्राई नहीं करा मैंने, तो मैं इस पे बता नहीं सकता कुछ। ये हाई से भी ऊपर कि हमने बस अपना हायर टाइम फ्रेम ही देखना है, अच्छा, कुछ बायस। नहीं देखना कि एंट्री कहाँ गई। ठीक है वैसे। बॉस भाई कुछ नहीं पूछना नहीं है। सोचना चाहिए, जब ऐसे एंट्री मिस हो जाती है ना तो दुख बहुत लगता है। पर उसी काम के लिए जो हमने कल परसों बात करी थी, वो क्या आपने बताया था मेरे को, वो ऑप्शंस है ना। ऑप्शन। हाँ। हाँ जी। पर वो ये है, हर चीज वीकली करने ऑब्जेक्टिव रख लो, जैसे डेली का वही नहीं, वही, वीकली रख लो ऑब्जेक्टिव जब करने कुछ। से हाँ पहले जी। सीखने पड़ते हैं कोई भी करना हो कुछ। ये- कोई नहीं, हमारा ग्रुप बैठा है, टेंशन नहीं लेनी है हमने। बड़े शूटर हो आप लोग भी, ओम भाई साथ रह रह के एनक्यू 28 जनवरी 9:50 AM OB। भाई कल FOMC थी, इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, है ना। AM सेशन पे तो मैं इसलिए आया ही नहीं। उस सेंस में देख लेता हूँ, अगर FOMC नहीं होती, पर देखो ही की पहली बात है, क्योंकि अगर FOMC नहीं हो तब भी मेरे को, ना मैं खुशी से शॉर्ट ना मैं खुशी से लॉन्ग, बट आप कह रहे हो तो देख लेते हैं चलो। 9:55 would mean prior to 10 AM, prior to 10 AM। ओके गुड बॉय, समवन गुड। बिल्कुल नहीं मारूंगा मैं, गैप हो जाओ बिल्कुल ही नहीं मारूंगा कुछ भी। ये एक तो FMC आफ्टरनून में, एक तो डेली चार्ट से मेरे को क्लियर आइडिया नहीं, एक तो और रेंज इतनी गंदी, ऊपर से 9:30 ऐसी वैलिडेशन, सोच भी कैसे लिया मैं मारूंगा जबरदस्ती है ये रोश भाई, ये तो जबरदस्ती है। 9:30 पता है कैसी होती है जब होनी चाहिए। यार मैं इस पे क्यों कर रहा हूँ, डैश डैश पे करूँगा। ऐसी होनी चाहिए 9:30 जब आए। दिस इज व्हाट यू कॉल ड्राइवर अलाइन कर रहा है आइडिया से उसको। फ्यूल है, ड्राइवर दिखाता है कि डे का वहाँ जाने का वो आइडिया एक्चुअली प्ले आउट करने का फ्यूल है, और वो डे करना चाहता है, विलिंगनेस दिखाता है ड्राइवर कि मैं करना चाहता हूँ तो मैं भागूंगा, नहीं करना चाहता हूँ अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देख लो जाना चाहता है, और वर्सेस कल वाला खुद कंपेयर करो, ये क्या बोल रहा है आपको। इतने फैक्टर गिना दिए तब बिल्कुल ही नहीं दूंगा मैं। गट। कल यस ने ऐसे कल कल नहीं अच्छा था ना फ्रेमवर्क। कल मैं 9:30। इधर मारने आया था शॉट, पता है मेरे पास दो चॉइस थी, ES शॉट या YM लॉन्ग। YM लॉन्ग इतना खुशी से नहीं, पर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई मैं वैसे, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ 2:30 अराउंड, मैं पता क्या चाहता था, ES यहाँ पे आए, इसके नीचे जाके फिर इससे अवे डिस्प्लेस करे, तब मैं ES शॉट मार लूंगा। अच्छा ये NQ है, समझ गया ना आइडिया फिर भी। हाँ, इसके नीचे आए और यहाँ से जाए, वापस ऊपर ना जाए, फिर मैं ये शॉट सोच सकता हूँ, यहाँ तक तो नहीं प्रीवियस लो, यही ऑब्जेक्टिव स्टिल। और वाई एम,
वाइम मेरा था इसके ऊपर फाड़ के जाए तभी मैं एंट्री देखना शुरू करूंगा। बस 2 ही एसेट पे मेरे पास आइडिया था, यहाँ तक मार दूंगा प्रीवियस डे आए, वो भी एक्सट्रीम अच्छा फ्रेमवर्क तो ही मारूंगा। सिर्फ लोज रिजेक्ट, वही रिकी भाई कंजर्वेटिव अग्रेसिव अप्रोच। इमीडिएट अलाइन नहीं ना कर रहा है 2 दिन से, इससे अबे मारना चाहता था इस दिन नहीं कर रहा, इस दिन भी नहीं कर रहा, तो सिर्फ लो की मैनिपुलेशन नहीं, हाई की डिस्प्लेसमेंट। जब अग्रेसिव फ्रेमवर्क तब डिमांड, अग्रेसिव होना है तब मतलब कन्विक्शन ज़्यादा है, क्लैरिटी ज़्यादा है और प्राइस एक्चुअली जा रहा है, तब यू कैन डिमांड लेस सिग्नेचर्स। बट जब थोड़ा कन्विक्शन कम है तब सिग्नेचर ज़्यादा, तब कंजर्वेटिव। या तो पहला काम आप कंजर्वेटिव अप्रोच में फ्रेम ही ना करो, तब तक वेटिंग मोड पे चल जाओ। अगर आपको सिंपल रखना है कि सिर्फ जहाँ पे अग्रेसिव हो सकते हैं वहीं फ्रेम करो। ऐसे मेरे को रोज़ आता हूँ और आई कैन एक्चुअली फ्रेम इन द एडवांस में, तब मैं दोनों तरीके से कर लेता हूँ। बट नॉट नेसेसरी कि अगर आप 80% प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन फ्रेम करते हैं, नॉट नेसेसरी कि 60% वाले भी करें। 60% वाली सिंपली बुक से हटा दो, वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा, गॉट अ पे अप प्राइस। ना वाईएम अलाइन हुआ जस भाई, ना ही ईएस। अच्छा रिकी भाई क्योंकि मैं, आपने वाईएम तो हम लॉन्ग्स देख रहे थे ना, हाँ क्योंकि उस दिन आई, आप सोच रहे कि ये रेंज होल्ड कर जाए। हाँ वो जी उस हाँ दिन जी, तो होल्ड कर गई थी पर अगले दिन नहीं हुई। हाँ नहीं हुई तो अभी फिर मैं चाह रहा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं, देखिए भाई M3 देख के वही कंजर्वेटिव अग्रेसिव अप्रोच का आइडिया नहीं हो तब बंदा ये नहीं ले लेगा, है ना। इधर आया 230, उसके बाद कंटिन्यूशन, बट दिस फेल्स, है ना। वही स्टिल रीजन हाई टाइम फ्रेम पे है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है भाई हाई टाइम फ्रेम से। हम्म, हमें पता भी नहीं होता कैसे, पर हो जाता है। अब चार्ट्स गंदे हैं, कल साफ करूंगा, अभी मेरे को गैप होना पड़ेगा। ठीक है भाई जी, कौन चलता है गैप होने। कैसे हाँ जी भाई जी, जा रहे हो सर? जा रहे ओके हैं सर। क्योंकि कल मैंने एक जगह जाना ही जाना है, आपको पता है शायद कहाँ है ना, तो उसके लिए बहुत जल्दी जाना बिल्कुल पड़ेगा। पता है। वो ठीक है, वो तो जाते हो आप। रोज नहीं पर स्पेसिफिक डेज पे तो हम्म। वहाँ जाना ही जाना है सर, ऐसा सीन है। ओए, और अच्छा 15 है यार, तो हटाऊंगा, जर्नल देखूंगा, पुट करूंगा कल ही। ठीक है फिर, बाय बाय, रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है भाई।